हाँ भाई क्या हाल है भैया. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग. दिस मस्ट बी नंबर 45. ये मुझे हैरत है, इतने अरसे से कर रहा हूँ. आई हैवंट इवन टच 50 येट. आई ट्राई टू बी वेरी वेरी रेगुलर दिस मंथ, क्योंकि बीच में भी थोड़ा सा गैप आ गया था. आई एम लिटिल अंडर द वेदर राइट नाउ. यार गर्मी ठंड अजीब सा हो रहा है. एनी वे, एंड आई होप आप लोग की ईद बड़ी अच्छी सी गुजरी होगी. माइन वॉज गुड इज़ वेल. और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ऑन पेट्रियन. ख़ास तौर पे माशाल्लाह वीव क्रॉस्ड 80. दैट्स अ गुड नंबर. So if you want to support on Patreon, you can do that on patreon.com/ganjiswag, and you can also become a member and supporter on Facebook and YouTube as well. चले विदाउट फर्दर अडू आज के सवालात की तरफ चलते हैं. हाँ जी, पहला सवाल ब्लडी HEC. ओके, नो सरप्राइज. HEC इज़ हायर एजुकेशन काउंसिल है, कमेटी है, क्या है, whatever. Assalamu alaikum Junaid bhai, my name is XYZ from Islamabad. I'm in my mid-20s, male. Sorry for long email, but I'm desperate. That's fine. Background: my father is a retired 20 grade officer from a top ministry. After his retirement, he got a job in an oil company in Saudi, and we moved. However, after some years, my father left the job willingly and we came back. I was in the midst of high school during this transition of moving back. I had finished my IGSE and just started A levels when we moved back. Facilities we had in Saudi that my father willingly forego: free education, free healthcare, free housing and utilities, furniture allowance, annual air ticket. Furniture allowance kitna matlab, like how often do you get furniture allowance? Anyway, annual air tickets, interest free loans, company car, free membership to company family club, free access to all sports facilities imaginable, free access to company Eid parties, tax free income, transport allowance and much more. यानी इनके फादर ने ये सब let go कर दिया. Ask yourself, if you were given the above facilities, will you leave them and come back? Some people are working in that very company for 20 plus years. 10 years is nothing, and if my father would have stayed there for another 10 years, we were only there for 4. I would have been graduated years ago. There was no rational reason to leave this company. His reason was this typical अपना मुल्क अपना होता है, एंड यहाँ टके टके के लोग हैं, मैं अपने बैचमेट्स के साथ रहूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एक तो ये दोस्ती के चक्कर में जो अंकल रह जाते हैं ना पीछे, कि अपने दोस्त याद आ रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठना है. They screw things up. Where it went wrong. I don't know if you're aware that if you come back to Pakistan with just IGSE's O levels, bloody HEC requires you to do Pak studies, Urdu and Islamiyat in O levels. They will not provide you equivalent certificate after A levels. Yes, I think I've heard of it. Few questions. If I had completed more than 8 IGSEs abroad, I did 11. Why are returning students required to do 3 subjects? अच्छा, इसमें मेरी बेटा कोई knowledge नहीं है. What good will come from forcing students to do these subjects? Honestly speaking, by forcing a student, will they really become a good patriot by studying Pak studies, or will they really respect their national language, Urdu? And will they really become a better Muslim if they are forced to study Islamiyat? After some research, I found out that majority universities in Pakistan also have Pak studies and Islamiyat as their compulsory units regardless of the degree. Name one country that forces their students, be it their citizen, to study their religion and history. Does UK citizen have to study Christianity and British history in unis? Does do Turkish citizens have to study Islamiyat and about Ottoman Empire in their universities? Do Arabs have to study Islamiyat in their unis? I mean, the holy book is in their language, yet they are not forced to study. जिनकी ज़बान में कुरान है, हम उनसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं क्या? And most importantly, why are our authorities and institutions so dumbfounded that they cannot read or interpret O levels and A level certificates? Rather, they need an equivalence. That is, that these degrees are equivalent to this percentage. Acha. In stubbornness, I chose not to do these 3 subjects. Now, after nearly a decade, I realized I should have done those. Oh shit. While I was doing my A levels, I found teaching methods here are completely opposite of that of abroad. Such that in my first A levels maths class, the teacher began by saying, "Examiner aapse ye puchega." I was shocked. Everywhere around the world, teachers focus on teaching the concepts, and we only discuss about passing papers or exams 2 months prior to final examinations. Here, in the first class, teachers started discussing past papers and exams since no concept were properly taught, only past paper discussions.
I failed math and science in AS, after which I dropped math and science and changed to social sciences. For the record, I was not exactly dumb in maths and science abroad. I got A. बेटा come to the question, आप बहुत लंबी कर रहे हो. Universities. Oh, it's a very long email. चलें अब मैं कर लिए शुरू तो ख़त्म ही करते हैं. University. Somehow I managed to pass A levels and got admission in computer related field abroad, but I couldn't clear 2 semesters even after repeating 2 years, and then after. You're not beta coming to the question. बहुत लंबी email है. Also, I would like to mention I was not an easy person to live with, daily taunting, degrading. Okay. Suicide. Okay. Since I'm too weak to tell my parents about my result that I failed again. Acha, so I'm assuming that you failed somewhere in between. I'm sorry, I have to like bit up butt in lots and lots of emails. तो थोड़ी बहुत details share रह जाए. I failed again because I know for a fact that my father will ridicule and taunt me, and my mother once again with greater audacity in front of all relatives and family friends. I had fully planned to end this misery once and for all, so much so that I had deleted my accounts except for this email, deactivated all social media accounts, formatted all storage devices, factory reset all phones, basically deleted my digital footprint. Not just taunting, since my father is a retired government officer, he constantly give examples of his batchmates, children who are settled. फलाने का बेटा यहाँ लग गया है, फलाने ने CSS कर लिया है, फलाने के बेटे की शादी हो गई है और तुम अभी तक बैचलर कर रहे हो. टू विच आई ऑलवेज रिप्लाई, अगर आप सऊदी नहीं छोड़ते तो मैं कब का सेटल भी हो चुका होता. ऑल माई फ्रेंड्स इन सऊदी ग्रेजुएटेड ईयर्स अगो, some are well settled. I'm a full 6 years behind. I've been wanting to end it months ago but failed to take the next step every time because I picture my mother in my mind. How would she feel and how would she react? Your help. Junaid bhai, trust me when I say this, I'm exhausted as fuck. I'm tired of moving and shifting. My father's ministry requires to move places every now and then in Saudi and then back. I have changed 11 schools up until A levels. I have lost the ability of making new friends for the past 10 years. I have no friends to share all this with. I've given up on education, hence failed 2 unis. It's very easy for everyone to say to children कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, etc etc. कबर का हाल मुर्दा जानता है. Sometimes I also think कि मुझे वो 3 मनु सब्जेक्ट्स कर लेने चाहिए थे, पाकिस्तान में एडमिशन मिल जाता और बाप के इतने पैसे भी ज़ाया ना होते. Is asking for a stable life too much? I mean academically stable where you graduate from the same school you join in class 1. I was well settled in school in Saudi with peace of mind. बेटा बहुत लंबी ईमेल है यार. I'm going to conclude it over here. ठीक है ना? I'm sorry. But अब देखो जो हो गया. अब सऊदी छोड़ दिया, अब आप इस बात को लेके कब तक रोते रहोगे, राइट? ठीक है, आपके फादर लेट गो ऑफ थिंग्स. जैसे कि मैंने कहा कि ये अंकल्स कुछ होते हैं, उनको बस उनकी ठरक ये होती है कि बस शाम को सिंध क्लब में, कराची क्लब में, बोटिंग क्लब में, यॉर्ट क्लब में बैठ के ताश खेलें और सारे दिन की बातें करें. दैट्स व्हाट दे वांट. और फिर ये अंकल्स जो हैं, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट वाले, पीपल हु मूव अब्रॉड फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस या इस तरह की चीज़ों में, सो दे मिस ऑल दैट. क्योंकि फिर देन यू हैव अ वेरी लिमिटेड सर्कल. अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू पोस्टेड इन जद्दा और रियाद और दुबई और वेरेवर, सो दैट्स द होल पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इज़ द ओनली वर्ल्ड. वही उसी में आप घूमते हैं. सो एक पॉइंट के बाद फिर वो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं टेम्प्ट कर रही होती, वो आपको कर रही थी कि यू वांट टू बी हर्ड. सो आई अंडरस्टैंड where your father went, कि I need to give this all up because I want to be closer to my batchmates, and that's what he did. वो उनका डिसीजन था, उनकी लाइफ थी, उन्होंने वो डिसीजन ले लिया. इट सिवियरली इम्पैक्टेड योर्स. वो जो आपने HEC वाली बात की बिल्कुल सही है. इट्स वेरी स्टूपिड. फोर्स किया जाता है यहाँ पे. अब ये तो आप A levels की बात कर रहे हो. मैंने पिछले एपिसोड में आई डोंट नो, पिछले एपिसोड में हाँ, कि अ फ्रेंड ऑफ माइन इज स्टडिंग डिजिटल मार्केटिंग इन अ वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इन कराची, और वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इस्लामियत पढ़ा रहे हैं. लाइक 70% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग. उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, इस्लामियत भी है. लाइक फॉर व्हाट? देखें, आपके फादर ने जो किया, that was his decision. It severely obviously impacted your life. I'm really sorry for that. मगर अब ये कि अब उस बात को लेके you cannot
spend rest of your life कि अगर ये हो जाता या अगर मैं ये कर लेते या अगर वो कर लेता, उस बात को अब 6 साल हो गए. What you need to focus on is what's important for you right now and how you can change and alter these things. दोस्त आगे निकल गए, दोस्तों के सर्कमस्टांसेस अलग थे, उनके बाप आपका बाप नहीं था. You know what I'm saying? So compare, it's a very illogical comparison. लोग करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ. We compare our incomplete lives with the lives of other people जिनके circumstances ही बिल्कुल different होते हैं. So like your friends had different set of circumstances. वो मैं ये नहीं कहूँगा आगे निकल गए, बट मैं ये कहूँगा कि बस they were lucky enough, or what you can say is उनका pathway थोड़ा सा different था, आपका different है. So उसको compare करेंगे तो हमेशा डिप्रेस ही होंगे. अब 6 साल गुजर गए, देखिए 6 साल तो नहीं आते, but do you want it to be 7 years or do you want it to be 8 years? You don't want that, right? So you need to stop thinking like that now and take action forward, knowing what's good for you. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो हो गया, really sorry to hear all that. I wish I could read all of it. दूसरों को भी चांस देना है, लेकिन ये कि और सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लाइफ इज़ very very precious. You're very lucky to be alive. You're very lucky to have so many things that even after all this that you're going through, you are extremely lucky to have the kind of life that you have. You have no idea the kind of lives other people are living. And just because people are living like miserable lives doesn't mean कि only then you should cherish yours. ये भी गलत तरीका होता है. मगर ये कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, खाली सिर्फ ये ही नहीं, इस पे ही टाइम नहीं ज़ाया करना. सो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मगर ये कि सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन. ठीक है. हाँ जी. सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम अ डाई हार्ड फैन, वॉच ऑल योर वीडियोज़. आई एम फेसिंग अ लिटिल प्रॉब्लम इन माई लाइफ, कंसिडरिंग, प्लीज़ कंसिडर माई क्वेश्चन. My name is ABC and I study at Medical University, 3rd year. From one of your videos in which you were motivated to do something, come out of your comfort zone, so I decided to do something in life as I am from a lower middle class background. Our hostel was not having a mess service, but there was a kitchen and a mess hall. I decided to take this opportunity and started a mess with my hostel fee of 20,000, which I took from father, and managed to do topi to warden of 3 months. After that I paid it. पता नहीं क्या लिखा है यार. There were 2 sleeping partners because I needed an investment, so they also invested their fee in terms of only profit. They will get no loss bearing. The idea was marvelous. I managed a good cook and a better quality at a rate 10% less than the market mess rate because of no rent and bills, which were having several disadvantages like quality issues, spices issues, menu issue, hostel timing issues, and so many other. But I eradicated each and every issue, provided best service. Soon after 15 days, I expanded it to girls' hostel too because it was just close. This went so good that in the first month I was able to get profit of 31,000, and I still remember which I invested more to get utensils, chairs, and after 3 months I gave a return of 26,000 to each sleeping partner with interest and got the whole business alone. Everything was best, but my studies were suffering. My assignments failed, attendance shortened. I managed for another. यार कॉमा लगाया करो खुदा के वास्ते यार, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो तुम लोग कॉमा नहीं लगाते हो. As assistant to look after bills and food, but still I couldn't give time. Months went and final exams came over in which I got a supply. I did it for 5 months and I have been giving mess to 146 people before COVID holidays started from 40 boys. Also providing mess to nearby hostels by delivery. Now it's been closed for a year because of COVID. Now I want a sincere advice. When Warden came to know about my profit, he's planning for auction of mess contract with local bidders. I'm having approximately investment and savings of 100,000 from this business. But my studies are suffering. So what should I do? Do I participate in auction and continue now, or leave this, focus on my studies because this might finish as good as soon as the degree ends?
Also, I'm having an idea of opening a hostel by getting a place on rent, managing things, providing mess from here and all that, because government hostels have limited capacity and students have lots of problems here, and also nearby uni like Punjab and GCU, UVAS, da 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 da, which I think I can eradicate and provide best service. What's your opinion, to go with my degree or with my idea? Also, my parents don't know about the mess business. In fact, they are sending me monthly expenses, money, and forcing me to study a lot, because at start, if I told them, they would force me to study, and after they will tell me to shut down and focus on the study. एक ही बात घुमा घुमा के. मोर ओवर आई थिंक, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा मूड ना आज ज़रा अजीब हुआ हुआ है. मोर ओवर आई थिंक माई डिग्री wouldn't give me that much output as I can have from this business, but as I mentioned, might end as soon as I graduate. So basically, there's this boy, मेडिकल स्टूडेंट है, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इनकी यूनिवर्सिटी में मेस है. मेस की सर्विस नहीं है, बट हॉल था, किचन था, तो इन्होंने जेब से पैसे लगा के मेस की सर्विस शुरू की. 146 बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं. फिर नियर बाय गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे भी शुरू कर दिया. फिर कोविड की वजह से भी थोड़ा सा वो हुआ हुआ है. फिर इनके वार्डन को पता चला, तो अब अच्छा, इनकी पढ़ाई भी सफ़र हो रही है इसकी वजह से. तो अब वो ऑक्शन होने जा रही है जगह. फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटिन्यू करूं या पढ़ाई करूं या मैं एक हॉस्टल खोल लूं लड़कियों का. देखो, इट्स वेरी गुड दैट यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी. आप मतलब सैकड़ों बच्चे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, आपने वो अपॉर्चुनिटी देखी, आपने उसको टैप किया. इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी एंटरप्रेन्योरियल, एंड आई रियली कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट. हैविंग सेड दैट, आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, गोल क्या है, आपने करना है क्या है. अगर आपको साइड बाय साइड हासिल करनी है तो इसको चला के रखें, मगर फिर फोकस फिर आप पढ़ाई पे ही रखें. ज़ाहिर है, आपने डॉक्टर बनना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लुक्रेटिव भी वही है, और मकसद भी ज़िंदगी का डॉक्टर ही होता है. मेस चलाना जो है ना, वो हमारे यहाँ लोग इसको फिर हवाई रोज़ी वाली बात है, क्योंकि कोविड का भी सीन चल रहा है, राइट. अब आपको नहीं पता रेगुलर क्लासेस कब शुरू होंगी. हॉस्टल वाला आइडिया आपका बहुत अच्छा है. आई थिंक यू शुड गो विद दैट. हॉस्टल में ये है कि लाइक यू नीड टू रेंट अ प्लेस, जैसा कि आपने लिखा, और सर्विसेज प्रोवाइड करनी, अच्छा सा वाईफाई लगाएं, कुछ सर्विस दें, कोई वेंडिंग मशीन लगा दें, ये कर दें, वो कर दें. सो वेरी गुड आइडिया. और मेस वाली बात जो आप कह रहे थे कि अगर आपकी डिग्री के बाद वो जगह वो फिर काम नहीं आएगा, आई डोंट सी वाई. इफ़ यू अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ले रहे हो, तो I don't see that as a problem. I would suggest keep doing that. It's side hustle, keeps you busy, but not at the cost of your degree, not at the cost of your studies. ये तो मैं कभी भी नहीं recommend करूँगा. Side hustle बिल्कुल होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए. क्या गमन छे तो जमन छे, पता नहीं क्या वो गुजराती की है. So मैं ये कहूँगा कि इसी में से रास्ता निकालें और इसको चला के रखें. एक अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, एक चीज़ जनरेट कर रही है आपको पैसे. वाई स्टॉप दैट. और वो गर्ल्स हॉस्टल वाला जो है ना, आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि लड़कियों को वाकई, अब लड़कियां वैसे भी ज़ाहिर है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान भी है. लड़कियों को भी समझ आ गई है कि भाई अगर सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो पढ़ लिख के करना और अपने बलबूते पे करना है, वरना किसी के भी हाथ पकड़ा देते हैं और फिर उसकी टर्म्स पे जीना पड़ता है और फिर जलील होना पड़ता है. और फेसबुक भरा पड़ा है. इनफैक्ट मेरी 44 एपिसोड्स का भी लुब्बे-लुबाब यही है कि औरत रुल रही है बिकॉज उसके हाथ में पावर नहीं है. तो अब और लोग भी अवेयर हो गए, अब अपनी बच्चियों को भी उतनी ही आला तालीम दिलवाने की कोशिश करते हैं जितना अपने बेटों को करते हैं. सो जिस शहर का आपने लिखा वहाँ पे इट्स ज़ाहिर है आसपास छोटे शहर हैं उसके, वहाँ की भी लड़कियाँ होंगी, ज़ाहिर है वो पढ़ना आना चाहती होंगी. बहुत सौ को मसले मसाइल हॉस्टल के ही होते होंगे, या अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती होंगी, या 10,000 मसले. ज़ाहिर है अकेली लड़की का रहना तो वैसी अजाब है इस मुल्क में. तो वहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, अच्छा माहौल हो, अच्छी तालीम हो, तालीम कह रहा हूँ, अच्छा माहौल हो, तो दे वुड बी ईगर टू जॉइन. एंड आई थिंक दिस अ वेरी गुड आइडिया. आई शुड डू दिस टू. मतलब लाइक दिस इज सच अ गुड आइडिया. कराची में भी होने चाहिए इस तरह के हैं. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मगर ये कि सो या दैट कुड बी अ वेरी गुड वेंचर. आई वुड सपोर्ट यू ऑन दैट. थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट वन. हाउ डू आई सेव माई सिस्टर फ्रॉम एन अब्यूसिव हस्बैंड? ओह गॉड.
Hi, Junaid sir. Hope you're doing well. This might be a long email. I'm writing this to you, but I'm scared and worried about my sister. We live in Canada and have been here for the past 17 years. My sister got married around 7 years ago to a guy from Pakistan. He was recommended to us by our chachu's friend. Back then, this guy seemed pretty normal, like all rishtas do. Eventually, we found out that he had previously been divorced. This was a red flag, and I suggested speaking to the ex-wife to find out what happened. अच्छा, इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना कि अगर कोई डिवोर्स निकल आए तो हम उसके पार्टनर से पूछते हैं क्या है उसमें, वो आई डोंट नो मैन, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ना, देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ द ट्रूथ, योर ट्रूथ, माई योर साइड, माई साइड एंड द ट्रूथ. तो एक्स वाइफ से अगर आप पूछोगे कि ये बंदा कैसा था, तो वो क्या बोलेगी? वो गीत तो गाएगी नहीं उसके, वो जाहिर है वो बोलेगी कि ऐसा था, वैसा था, अब्यूजिव था, ये था. वर्स्ट केस सिनारियो बोलेगी भाई ही कांट फंक्शन सेक्सुअली. क्या करोगे आप? प्रूव करोगे जाके? क्या हिला के देखोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसे केसेस में आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ गोइंग टू एक्स स्पाउस. नेचुरली डिवोर्स हुई है तो वो अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं हुई होगी, बुरे उसमें ही हुई होगी, राइट? सो आई डोंट सी द पॉइंट. आप क्या कहते हो भाई? हैं, अगर कोई डिवोर्स है क्या पूछोगे आप जाके कि जी कैसे, मतलब क्या आपको कोई अच्छी चीज़ तो सुनने को मिलेगी नहीं, राइट? एनीवे, बट सिंस अच्छा, सो आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, बट सिंस आई एम द यंगेस्ट सो नो वन केयर्ड अबाउट माई ओपिनियन. I really kept pushing for it, and they finally tried to talk to his family, but they refused to give any information. Of course, वो क्यों देंगे? This was obviously a red flag, but my sister's past 2 engagements had been broken already cause of other stupid reasons such as refusing to do a virginity test. यार कौन लोग हैं यार ये लोग? कनाडा में बैठ के वर्जिनिटी टेस्ट की डिमांडें मांग रहे हैं. ओफ यार, क्या करना है यार? मतलब टेस्ट करा के क्या करना है? मर्द का क्या है टेस्ट भाई? वर्जिनिटी टेस्ट क्या है? मर्द का कैसे करोगे यार? क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं यार? ये 2021 के प्रॉब्लम्स हैं ये. वर्जिनिटी टेस्ट मतलब देखना है कि भाई ये है कि नहीं है. व्हाट द हेल यार? उसकी क्या गारंटी है वर्जिनिटी टेस्ट की भाई? हॉर्स राइडिंग करती हो, पिलाटेस करती हो, एक्सरसाइज करती हो, योगा करती हो, पता नहीं यार क्या है यार. Because of this past trauma, everyone, including my sister, was fed up with everything and finally wanted some peace. We had shared all this information with him and his family, and I feel like they used all of this against us. Of course, आप अब इस तरह की अपनी weaknesses दूसरे को पकड़ाओगे तो लड़ाई झगड़े में तो वो निकालेंगे आगे से. Things proceeded and he started giving his demands as if we owed him a favor. He demanded so many things in Jahez, included an iPhone. यार कौन ये लोग हैं यार? iPhone मांग रहे हैं यार, लानत है यार. आईफोन मांग रहे हैं यार, खुदा की कसम यार. मेरा तो आई डोंट नो व्हाट टू से मैन. आईफोन चाहिए. आईफोन पर तो अगले साल नया आ जाएगा, फिर नई बीवी चाहिए. फिर उसके बाद हैं, सितंबर में आते हैं ना नया हर साल, तो वो तो स्लो कर देते हैं. नया सॉफ्टवेयर iOS अपडेट आती है, स्लो हो जाता है आईफोन. बस दैट्स इट. फकिंग हेल मैन. He also said instead of my sister moving with them to Pakistan, which was decided originally, and she was fine with it, he wanted to come to Canada. Of course, वो भाई वो क्यों कनाडा में शादी कर रहा है? इसलिए कि लाला मूसा में रहे? वो इसलिए कनाडा से शादी कर रहे हैं कनाडा में रहेगा? कोई होता है जो शादी करके यहाँ लेकर आता है. अबे कौन करता है भाई? तो ये तो यार बहुत अच्छा. He wanted to come to Canada with us and find a job. We said it's okay, she can stay, and when you can find a job, you can come. He didn't listen and kept insisting. After a while, my dad agreed and had to pay for him for all his Jahez shit to come to Canada. Wow, man. My sister got a great job though through a reference and was able to move out with him into their new house. He spent 4 years in Canada being jobless. अबे भाई कोई सीन नहीं है यार. अच्छा, ऐसों को मिल भी जाती हैं ऐसे सारे लोगों को मिल भी जाती हैं. कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की अच्छी लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़की, इनको मिल जाती हैं. पता नहीं उन लोगों की क्या मजबूरी होती है यार, ऐसों को पकड़ा देते हैं. ऐसी क्या मजबूरी होती है यार? यार हद है यार. दिस इज क्रिमिनल.
मेरी हुकूमत हो ना, खुदाई कसम मैं जेल में डाल दूं माँ बाप को कि यार आपने कराया कैसे, हाउ डेयर यू. My sister worked during the day, got back, cooked dinner, of course, and had to clean the house. After cleaning the house, she would cook lunch for him so that he could eat when she wasn't home. अच्छा, साहब के लिए वो लंच भी बना के जाती थी. She even had to prep meals for the kids before she. अरे यार बच्चे भी हो गए. अच्छा बच्चे फौरन कर लेते हैं, नौकरी नहीं है, बच्चे कर लो. She's a f***ing human and doesn't deserve all this. Of course, man. We would see her once in 2 weeks or something because she was that busy. And every time we would meet her, she would look absolutely horrible, like someone homeless and barely getting sleep. Even when we would meet, he would constantly be telling her to leave and get back home. अच्छा हाँ, controlling होगा ना, घर आओ वापस. They lived like that for 4 years until he got homesick and wanted to go back. अच्छा अम्मी याद आ रही होंगी. But instead of going back to visit, he made my sister and her 3 kids to move back to Pakistan with him. Oh God, this is where shit gets even worse. She's a doctor and has a lot of experience, but it wasn't enough to find a really good job in Pakistan. She now works 2 jobs and is pregnant with the 4th kid. What the hell? चौथा बच्चा भी है. चौथा बच्चा. अबे यार एक आदमी काम नहीं कर रहा, उसे लगता है यही काम कर रहा है, यही जॉब है उसकी. शादी से पहले वादा करते ना बेटी का पेट नहीं खाली रखेंगे, अबे वो खाना खिलाना था, ये बच्चे भर देते हैं हर साल. अबे यार दैट is still jobless. Eventually, as things got worse, she asked for a divorce, but this only caused a reaction from him. Of course, he hit her saying, you know, I've been trying and shit, and basically guilt tripping her. She has no one in Pakistan. Even her in-laws talk shit to her. She's basically a maid over there. Because she asked for a divorce, he took away her phone and deleted all her social media and WhatsApp. She's not allowed to speak with us unless it is in his presence. She only gets to call us over the phone and speak with us for 10 minutes every week. मतलब it's like a fucking jail. जेल में होता है ना, थानेदार खड़ा होता है और आप फिर बात कर रहे होते हो फ़ोन पे. ये लोग अपनी औलाद के साथ ये करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई. I haven't even seen my nephews and nieces for so long, I forgot how they look now. We are all very worried now. My parents spoke with his parents, but we haven't confronted them about this. We said we want to come to Pakistan, but they keep making excuses every time and saying don't come. We don't know what to do. Even if we go there, how are we supposed to get her out of that? We want her to get full custody of the kids and come back to Canada, but don't know if it's legally possible or if it's ethically right because that is still their father. I'm so sorry about this. Email is very long. नहीं बेटा, sorry की कोई बात नहीं है. Alternate solution. There's the illegal route which me and my brothers are considering. We want to go to Pakistan and take my sister and kids somewhere safe and away. We will then meet her husband alone and beat him up, not kill. But before this, we will have flights documentation ready. No, don't do that. पता है क्या, वो जो भी है at the end of the day बाप है, वो अगवा का केस लगा देगा आप पे कि इन्होंने मुझे मारा है और मेरे बच्चे अगवा करके ले गए. वो केस बहुत बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा. ये हरकत तो करना ही नहीं आप. आपकी बहन कैनेडियन सिटीज़न है, कनाडा की, ट्रूडो को बोलो इसकी फाड़ दे इसकी. आप कनेडियन गवर्नमेंट से रब्ता करें सीधा, उनके जो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है वगैरह वगैरह जो इस तरह के डोमेस्टिक इश्यूज़ को देखते हैं, केस आपका सीधा सॉलिड है. एक आदमी, उसकी हिस्ट्री है भाई, वो 4 साल रह के गया कनाडा में, आप दिखा सकते हो भाई यहाँ पे भी बैठा फारिग था, जुल्म करता था. जो भी है, बहन ने नहीं रिपोर्ट किया, नहीं किया, डर के मारे, वॉटेवर, सोशल प्रेशर, ईस्ट मतलब देसी फैमिलीज़ वगैरह वगैरह, दे अंडरस्टैंड. और अब वो लेके चला गया और उसको कैद किया हुआ और फ़ोन वोन भी नहीं दे रहा, सीधा केस है. मगर ये मत करना भाई, मार धाड़ की पाकिस्तान में 2 मिनट नहीं लगते भाई वो टेढ़ा वकील करने में. कहते ना, यू नीड अ क्रिमिनल लॉयर, तो यहाँ भरे पड़े. ऐसा केस घुमाएंगे, उल्टा आपको अंदर ना कर दें यहाँ पे कि ये अगवा करके लेके जा रहे थे और मुझे कत्ल करने आए. वो तो सीधा कत्ल का करेगा. आपने बोला ना कि मारेंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, वो तो सीधा बोलेगा जी तो कत्ल करने आए थे लोगों ने, बच्चे वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है. डोंट डू दैट. सीधा लीगल राउट यूज़ करें. मगर मुझे यार बहुत अफसोस होता है यार, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. जो लोग रेगुलरली सुनते हैं, आप देख रहे हैं, पर एक लड़की कनाडा की डॉक्टर है यार. अबे
लैया की भी नहीं, कनाडा की। कुछ तो लेवल होगा उसका। और ये ज़िंदगी जी रही है वो, ये ज़िंदगी। वाई? बिकॉज चाचू के किसी दोस्त ने रेकमेंड किया था। पता नहीं यार, ये हमारे माँ बाप क्या जनरेशन है यार। बहुत सॉरी टू से दिस, मगर हमारी हमसे जो पिछली वाली जनरेशन है ना, फारिग तरीन। हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क है ना, ये इस जनरेशन पता नहीं क्या है यार ये। ना इनकी कोई डिसीजन मेकिंग, ना इनका कोई 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 खुद को इंडिपेंडेंट किया आज तक। अजीब है यार, बहुत अजीब हमारा हिसाब किताब है। इट्स डिस्गस्टिंग। इतनी बेहतरीन उसकी लाइफ ज़िंदगी गुजर सकती। कनाडा की डॉक्टर है यार, अच्छा। पता है आपको कनाडा में डॉक्टर कितना कमाते हैं, और कमा सकते हैं, और कमाते हैं। एंड लाइक शी इज़ फोर्स टू लिव अ लाइफ विद दिस। बच्चों पे बच्चे किए जा रहा है, काम नहीं कर रहा। एक ही काम कर रहा है, बच्चे कर रहा है। फ़ोन भी छीन लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया यार। दिस ब्रेक्स माई हार्ट मैन। अच्छे खासे लोग जो है ना, दे आर फोर्स टू लिव। वी बहुत शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ, कसम, सॉरी टू से। आप जितना बोलें कि जी नहीं जी, अच्छा काम है, नेक काम है, वो काम है, काम बुरा नहीं है शादी। बट द वे दे हैपन, और द वे विमेन आर सो वल्नरेबल इन दिस एंटायर इक्वेशन। कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। अबे सीधा सीधा केस है ये। कोई किसी ढंग के मुल्क में सीधा सीधा एक फ़ोन कॉल, पुलिस आके उठा के ले जाए। मगर यहाँ वो कुछ कर ही नहीं सकती। यहाँ पुलिस आके बोलेगी जी आपका ज़ाती मामला है। क्या ज़ाती मामला है? टैक्स लेने तुम फ़ौरन आ जाती है गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन के लिए नहीं जी आपका ज़ाती मामला है। ये क्या है? अब वो बच्चों की क्या ज़िंदगी होगी यार? छोटे छोटे बच्चे हैं वो, क्या क्या ज़िंदगी गुजारेंगे वो? कनाडा छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। पहले तो यही सबसे बड़ा डाउनग्रेड। दूसरा, इस माहौल में जहाँ माँ को फ़ोन नहीं यूज़ करने दे रहे, क्या ज़िंदगी होगी उस औरत की? वो क्या मोटिवेशन होगी, क्या पालती होगी उन बच्चों को? इट्स वेरी सैड। बहुत अफसोस होता है यार। और ये एक, लाखों हैं ऐसी कहानियाँ, लाखों नस्लें, अगली नस्ल भी बर्बाद है बिकॉज ऑफ हमारी प्रीवियस नस्ल के। अगली नस्ल भी बर्बाद है। इट बॉयल्स माई ब्लड मैन। तो मैं आपको बेटा यही मशवरा दूंगा कि आप लीगल तरीका यूज़ करें, इलीगल तो जाए ना। पाकिस्तान में केस बिगाड़ने वाले हर बंदा बैठा हुआ है, वो आपका केस बहुत बिगाड़ देंगे। आप सीधा सीधा कैनेडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, बोले हमारी बहन के साथ यही हो रहा है, कनाडा में भी ये होता था, हम रिपोर्ट नहीं कर पाए, वट एवर जो हो गया। अभी भी शी इज़ लिविंग लाइक अ प्रिजनर, एंड वी वांट दिस टू सेटल डाउन। फिर जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, वो फिर सीन ही अलग होगा। तो इस तरह अगर आपने किया ना, तो वो फिर अगवा का केस है, वो फिर आप भी जेल में, फिर आपके भांजे भांजियाँ भी ना ज़िंदगी भर की कैद में। ख्याल रखना बेटा। और इससे भी मुझे याद आया, अभी परसों ही खबर चल रही थी, इटली में एक लड़की इज़ प्रिज्यूमेबली डेड बिकॉज उसकी फैमिली ने मार दिया। वो फोर्स मैरिज करा रहे थे, वो नहीं चाह रही थी, तो वो लड़की गायब है। वो खबर काफ़ी दिनों से चल रही थी। पता नहीं यार कैसा कैसा पेंडू जो है ना, उठ के दुनिया भर में जाके बदनाम करते हैं। शादी शादी शादी, हवा बना दिया ना, सर पे चढ़ा दिया, शादी 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 शादी। खुद की कौन सी अच्छी शादियाँ थी तुम्हारी? अजीब है यार। एनीवे, नेक्स्ट वन, confusion between friendship and money. Okay. Sam Junaid bhai, hope you're in good health. I am a 21-year-old from a small city studying in a university in Islamabad, studying what I always wanted to and fully supporting myself financially. Shabash. First of all, I would like to say thank you for what you're doing. I've been watching all your videos. Blah, blah, blah. When I was in class 9th, I was super famous in my school and had so many friends and relationships in small city as well, and but I was not earning anything at that time. ठीक है, 9-10 में क्या कमाना, कुल्फ़ी बेचनी थी क्या? कोई मसला नहीं. Fast forward to my college life, I started working with 2 top PR agencies. It was a good experience, but all of a sudden my extrovert personality got converted into an introvert personality. My friends started considering me as rude as I used to say no to hangouts almost every single time. I made a decision to give up my job once I got into the university, which I did, and I might be the biggest mistake of my life. Fast forward to my university life, I was mainly friends with seniors and stuff, but within a few months, I wanted to earn money and work again. So I started working again. But due to the overload, I often had to say no to their invitations, and boom, they stopped calling me. I felt bad again, made new friends, many friends,
But it's like a cycle. One day I miss my friends and want to hang out with them, enjoy life, and the other day I want to earn money, as I feel like none of them are productive. They talk about shit and that doesn't matter. They play games that makes no sense either. Now I'm earning 2 to 3 lakh per month, and I'm sure if I keep doing it, it will expand. But I want to have the same life as class 9 10th. Please guide me. Da, 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 da. So basically, this boy was very popular. बहुत सारे दोस्त थे. फिर इन्होंने सोचा कि मुझे कमाना चाहिए, which is good. काम में लग गए तो फिर इसकी वजह से दोस्तों को नो कहना पड़ा, तो वो दोस्तों ने उनको छोड़ दिया. तो फिर बेटा वो आपके दोस्त नहीं है ना. अगर वो आपको if they value their hangouts more than your success and growth, then they're not your friends. तो ऐसे लूज़रों के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर बंदा अकेला ज़िंदगी गुजार ले. ठीक है. यूनिवर्सिटी में भी फिर इनके साथ यही हो रहा है कि जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो काम छोड़ा यही सोच के कि यार मैं फिर डबल उसमें ना पड़ जाऊं. लेकिन फिर दोबारा काम शुरू किया तो अब फिर यही हो रहा है. दोस्त जो हैं छोटी छोटी बात पे, यार एक तो ये क्या बॉयज़ हैं यार, ये किस किस्म के बॉयज़ हैं. नाराज़ होते हैं बॉयज़. मतलब एस्ट्रोजन बहुत आ गया लड़कों के अंदर. नाराज़ हो गए. बी अ मैन. नाराज़ हो गए. सो इफ़ यू आर नॉट हैंगिंग आउट विद देम, तो वो नाराज़ हो रहे हैं, तो भाई इनको आप समझाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ. काम काम है, दोस्त दोस्त हैं, सब ने अपनी अपनी जगह साथ चलना है. वन कैन नॉट ओवर पावर अदर. पढ़ाई की वजह से आप कमाना नहीं छोड़ सकते, ज़ाहिर है कमाना भी है. कमाई की वजह से आप दोस्त नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई हर चीज़ ज़रूरी है. तो अगर तो आपके दोस्त इतने ही कच्चे हैं कि वो आपको इतनी सी बात पे छोड़ देते हैं, तो यू आर नॉट मेकिंग गुड फ्रेंड्स. मैं तो यही कहूँगा, लुक फॉर अदर फ्रेंड्स. प्रोडक्टिव पीपल, पीपल हु बिलीव इन ग्रोथ, पीपल हु बिलीव इन एक्सपेंशन, पीपल हु बिलीव इन enriching themselves, right? ये बैठ के लड़कियों की बातें करना और फलाना फ़ोन और फलानी गाड़ी और फलाने टायर के रिम, ये ज़िंदगी में बेकार है, फजूल है. नवाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान, इन लोगों पे तो बात ही नहीं करनी आपने. इन योर 20s यू डोंट हैव टू engage yourself in this nonsense. अपनी ग्रोथ पे काम करो भाई, ये सब छोड़ो, ये आते आते रहेंगे. अब आप कह रहे हो मुझे 9-10 वाली ज़िंदगी दोबारा चाहिए, तो भाई फिर ये ऐसे नहीं होता. यू गिव सम, यू टेक सम. लाइफ ऐसे ही चलती है, एक जैसी रहती नहीं है. द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज. इट कीप्स चेंजिंग. 9-10 वाली ज़िंदगी आपको अभी नहीं मिल सकती, अभी वाली ज़िंदगी आपको 5 साल बाद नहीं मिल सकती. सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन. जो है उसी में ही रहें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको आपकी ग्रोथ को हैम्पर करें, जो ये समझे कि उनका हैंग आउट या चिका चीनों पे चाय पीना ज़्यादा ज़रूरी है एज अपोज टू योर पर्सनल ग्रोथ. यू डोंट नीड दैट शिट इन योर लाइफ. दैट कोई सवाल ही नहीं था बेटा. Next one, stressed about my future. Assalamualaikum Junaid bhai, my name is ABC, I'm watching your videos. A little background, I was born in Middle East and I've lived there till the age of 17, as I failed in my A-levels exam due to my immaturity, hanging out 24/7, smoking, etc. My father sent me to Pakistan to complete my A-levels, as in Pakistan education for A-levels is far better than Saudi. Until now I've spent only 2 years in Pakistan. Okay, ठीक है. My views on Pakistan, even though I live in a very posh area in Islamabad and Allah has blessed our family with everything, I still don't like Pakistan. I'm not surprised. Even after spending 2 years. Everyone, including my parents, say that I'm na shukra, but it's straightforward. Pakistan isn't suitable for me. ठीक है, नहीं सूट करता हर किसी को. My objective in life, I've been planning to move abroad for my so-called bachelor's. I have no interest in studies at all. I have a very entrepreneurial mindset since childhood. I'm earning right now through crypto and Shopify around $12,000 a month. Nice. Which I started back in 2019. The whole point to move abroad is to get a passport, and because they're very supportive for startups, and I do have 3 to 4 innovative ideas which could probably change the world. And I have the whole thing planned, and after spending sleepless nights doing research, I figured out that the ideas could make me a billionaire. That's nice. Canada versus UK. I've been searching on these two countries and got my offer letters for my bachelor's from both the countries. I don't want to experiment myself. Instead, I'm asking you, as you have traveled a lot, the things which I'm looking for in a country is
ease of getting the passport, ease of business, astonishing lifestyle. I don't want to do a startup in Pakistan because no one likes to waste their time in NAB offices. There are hundreds and thousands of issues in Pakistan. Sir, if you were at my place, which country would you have chosen? Sorry again. Okay. अच्छा, सो ये 19 साल के बॉय हैं, पढ़ाई में कोई दिल नहीं है, $12,000 कमाते हैं महीने का थ्रू शॉपिफाई एंड क्रिप्टो, विच इज़ वेरी वेरी डिसेंट, गुड. और एंटरप्रेन्योरियल दिमाग है, ये चाह रहे हैं कहीं बाहर रहना जहाँ पे पासपोर्ट आराम से मिल जाए. कनाडा वर्सेस यूके. अच्छा, पढ़ाई का सहारा लेके बाहर जाना चाह रहे हैं. अब आपने लिखा है यू हैव ट्रैवल्ड अलॉट. येस, आई हैव ट्रैवल्ड अलॉट, बट आई हैवंट ट्रैवल्ड एज अ स्टूडेंट, आई हैवंट स्टडीड अब्रॉड, सो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है. पासपोर्ट कहाँ का आसान मिल सकता है? तो आप यूके में 7-8 साल लगाएंगे, कनाडा में 5-6 साल लगाएंगे. और भी बड़े आसान तरीके हैं. आप जो है ना सेंट लूसिया या समवेयर अराउंड इन वेस्ट इंडीज़, डोमिनिका, वो आपको कितने $1.5 लाख में मिल जाता है पासपोर्ट. सो आप $12,000 अगर कमा रहे हैं महीने का, 2 साल जमा करें, ठीक है, और आप पासपोर्ट ख़रीद लें. अगर आपका मकसद पासपोर्ट लेना है, राइट, उससे होगा ये कि आप यू कैन ईज़िली ट्रैवल टू 150 कंट्रीज़, वो वेस्ट इंडीज़ के पासपोर्ट पे. तो आपने 6 साल बचा लिए. जो रूट आपने, अगर आपका मकसद सिर्फ पासपोर्ट लेना है, पढ़ाई में दिल ही नहीं है आपका, सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि पासपोर्ट लेना है, तो 6 साल लगाने से बेहतर है 2 साल पैसे जमा करके पैसों से ख़रीद लो, या टर्की का ख़रीद लो. इसी तरह एक और आजकल मैंने एक पढ़ा था, पोर्चुगल का एक वीज़ा होता है, इट्स कॉल्ड D7 वीज़ा, D7, लाइक D फॉर डॉगी स्टाइल. सो वो एक वीज़ा होता है, उसमें आपको प्रूफ करना होता है. उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, बाय द वे. उसमें यू हैव टू प्रूव दैट यू विल नॉट बी अ बर्डन ऑन पोर्चुगीज़ सिस्टम, और आपको शो करना होता है कि आई हैव अ लैंड, या मेरे पास एक इनकम आ रही है हर महीने, सो आई वोंट बी अ बर्डन. तो वो आपको रेजिडेंस देते हैं, आई थिंक 1 साल का या 2 साल का, एंड देन दैट कन्वर्ट्स इनटू अ पासपोर्ट वेरी वेरी इजीली. बट दैट्स मोस्टली फॉर ओल्डर पीपल, 40+ मे बी. आई डोंट नो उसकी क्या वजूहात हैं, बट दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन लुक इनटू. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह वगैरह जो है ना, ये आपने देखनी होगी. जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आपने देखना होगा कि टैक्सेशन कहाँ की फेवरेबल है. कनाडा में बहुत टैक्सेस हैं, यूके में भी बहुत टैक्सेस हैं. तो आपके जो आइडियाज़ हैं, आपने उनको उस तरह भी देखना है कि मैं कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हैं, यूरोप में काफ़ी हैं. आई वुड सजेस्ट यू शुड लुक फॉर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, दे वेरी टेक ओरिएंटेड एज वेल. एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, दीज आर गुड कंट्रीज़. और ये वो मुल्क हैं जो किसी फड्डे में नहीं है, खामोशी से अपना काम करते हैं, चुपके से रहो, क्वाइट लाइफ जियो. सो ये है. पढ़ाई वाले रास्ते से पासपोर्ट पुरानी टेक्निक हो गई बहुत, और अगलों को भी समझ आ गई है कि लोग क्यों आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने. ऑस्ट्रेलिया ये वो, अब वो बहुत हो गया. अब नए तरीके हैं, आसान तरीके हैं. पैसा लेके इन्वेस्ट कर लो उनके मुल्क में, वो आपको. वैसे टर्की में आजकल वो चल रहा है ना भाई, वही फ्लैट ले लो टर्की में तो पासपोर्ट दे देते हैं. अब ये तरीके हैं, इससे होता ये है कि आपका वक्त बच जाता है. सही है, तो वो एक तरीका है. तो कौन सा कंट्री, ये आपने खुद ही वर्किंग करनी है अपने आइडिया के हिसाब से. मगर ये कि आपका यहाँ ना दिल लगना, बिल्कुल 100%. और यहाँ तो स्टार्टअप भाई, सीधी से आपने सही बोला, नैप के चक्कर ही काटते रहोगे भाई, ये क्यों हो रहा है. कल ही मैं वो देख रहा था, 3D प्रिंटर के लिए जो है ना, आपको 11 एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती है फॉर 3D प्रिंटर. लाइक मेरे पास जो 2D प्रिंटर रखा हुआ है, जिसमें मैं ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने हम लोग सब यूज़ करते हैं, इमेजिन उस ख़रीदने के लिए आपको 11 लेटर लिखना है. 11 लेटर टू बाय अ प्रिंटर, 11 लेटर लिखना है. यार क्या है ये, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है. खान साहब से ही तो सवाल किया था मैंने, भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ बिजनेस पे क्या सीन है. कुछ भी नहीं है भाई. तो अब क्या आप यहाँ पे क्या घंटे की इनोवेशन करोगे जहाँ 3D प्रिंटर ही नहीं आप ले सकते. कहते जी बच्चे गन बना लेंगे. अबे बच्चे गन ख़रीद सकते हैं, डिलीवर होती हैं घर पे गन्स. यार कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते हैं यार ये लोग. सो यहाँ तो आइडिया ज़ाया करने वाली बात है. मैं डिस्करेज नहीं कर रहा उन लोगों को जो लोग ज़ाहिर है चाहते हैं पाकिस्तान में काम करना और ऊपर लाना. मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन जो फैक्ट है वो है यार आपके सामने. करके देख लो ना कारोबार,
पता चलेगा यहाँ पे, ज़रा दुकान तो खोलो। मुबीन ने यार इतनी मेहनत से वो रिक्शा मेरे सामने उसने बनवाया था, उसने फूड कार्ट के उसमें, अबे अजाब कर दी थी उसकी ज़िंदगी। 2.5-3 लाख रुपए का वो रिक्शा पूरा बना था, उस पर वो दाल चावल का उसने लगाया था। कभी केएमसी वाले आ रहे हैं, कभी केडीए वाले आ रहे हैं, कभी पुलिस आ रही है, और कौन कौन था, अबे भत्ते ही भत्ते भाई। ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, उसने बंद ही कर दिया। अबे काम काम के लोगों का मुल्क ही नहीं है ये चोरों के लिए। अगर आप चोरी करते हो, 2 नंबर काम करते हो, दिस इज़ अ हेवन, यूर लिविंग इन हेवन। क्यों रहते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, क्यों नहीं जाते? इतना पैसा है, जाके आइलैंड खरीद के क्यों नहीं रहते? अबे दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर दोज पीपल। शरीफ आदमी के लिए यहाँ है ही नहीं। क्या घंटे का काम करोगे यहाँ पे? सर पे 10 लोग खड़े होंगे। आप खोलो तो सही दुकान, कोई खोलो तो सही कोई दुकान। कि आप उस दिन, जिस दिन आप दुकान खोलोगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा ये भी कोई एजेंसी होती है, फलाना डिपार्टमेंट जी, ये इसका भी टैक्स, फलाना फलाना फलाना। अबे अगर मैं आपको बताया ना हम लोग कितना टैक्स देते हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्यों रोता हूँ मैं इतना। अबे भाई सिंध गवर्नमेंट को अलग टैक्स, एसआरबी का अलग टैक्स जाता है, एफबीआर का अलग जाता है, ये अलग वो अलग। दिखाऊं कभी इनवॉइस? वो मिलता क्या है? अबे गाड़ी सेफ नहीं है भाई, शीशे उतार के ले जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस में आप सेफ नहीं हो। अबे हटा, घंटा बंदा इधर काम करे। तो भाई ये पासपोर्ट अगर चाहिए तो ख़रीद लो पासपोर्ट, क्योंकि वक्त से बढ़ के ना कीमती चीज़ कोई नहीं है, राइट? वक्त बहुत कीमती है। तो अगर तुमने ये 6 साल माइनस कर लिए ना, सो यू विल बी अहेड ऑफ 6 ईयर्स, राइट? अपनी ज़िंदगी में। तो ख़रीद लो पासपोर्ट, मैं तो यही कहूँगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन, आई एम गे एंड मुस्लिम। सलाम अलैकुम जुनैद भाई, आपका आस्क जी स्वैग वाला सेगमेंट शुरू से देख रहा हूँ, आपके आंसर्स काफ़ी हद तक अग्री भी करता हूँ। आज मैं आपके पास अपनी ज़िंदगी की सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ लेकर आया हूँ, एंड आई होप वो टिपिकल लोगों वाला जवाब नहीं देंगे। जुनैद भाई, आई एम 19, currently doing my second year in college, pre-engineering, and I am a homosexual, Pakistani, and a Muslim, alhamdulillah. In case you are thinking that I am proud of being homosexual, then you are wrong. Because it made my life a living hell. And here also let me tell you that there is no way back. मैं जब 15 साल का था तब I realized that I'm interested in guys sexually. At that stage I found girls attractive as well. Even अभी भी girls attractive लगती हैं but not sexually. I hope you would get it. I don't get it, but ठीक है, आप कह रहे हो तो. I don't know if it would be accepted by my religion or not, but I really don't want myself being pushed out of my religion, Islam, because of being homosexual. On the other hand, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं homosexual अपनी मर्जी से नहीं बना. It just developed inside me naturally, which I had no control over, and even today I ask Allah why. I don't know मेरा future क्या होगा, because I don't think I would make a girl happy if I marry her. So I have no plans on getting married in the future and destroy a girl's life also. On the other hand, I don't think I would be able to survive my whole life alone, and as till now, I'm pretty much stuck. I've tried many times कि मैं किसी तरह लड़कियों में interest develop करूँ, but every time I try, I fail miserably. Thirdly, my parents would never accept me like this. Maybe my mother would, but I have no plans of coming out to anyone, not even my parents or my close friends, because I know they'll leave me at the same moment I'll tell them that I am a homosexual. Because of this society, मुझे suicidal thoughts भी आते हैं, but मैं फिर religion के हाथों मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि suicide की वजह से I will end up in hell. Also, if I keep on living like this, I would again end up in hell. और आपको अंदाज़ा हो गया होगा how much this thing stresses me up. I hope कोई solution ज़रूर देंगे. थैंक यू सो मच, आपने ईमेल की और आपने इतनी पर्सनल चीज़ मेरे साथ शेयर की. आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट कि आप ने जैसे लिखा कि आपको अपने फ्यूचर से कंसर्न सबसे ज़्यादा ये है कि आप यू डोंट वांट टू बी इन अ मैरिज एंड रूइन अ गर्ल्स लाइफ. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर जो होता है लोग सोसाइटी के प्रेशर से या घर वालों के प्रेशर की वजह से कर लेते हैं, और फिर बेडरूम का हाल तो फिर मियाँ बीवी को ही पता होता है. बाहर वाले तो अपना हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, हमने बच्चे की शादी करा दी. फिर उस लड़की की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. और फिर वो जो है ना,
क्योंकि हर गुनाह की माफ़ी है, दूसरे के साथ जुल्म करोगे ना उसकी उसकी माफ़ी नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? तो अगर आपका कंसर्न फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पॉइंट ये है कि आप यू वांट टू बी अ गुड मुस्लिम, बट ये आपके अंदर एक चीज़ है ऑलरेडी, तो फिर उसमें ये नहीं कीजिएगा कि किसी लड़की के साथ आप रिश्ता अज़दवाज में आ जाएं और फिर उसको उसका हक ना दें, और फिर वो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी। सो कीप ऑन विद दैट। इफ़ यू नो, अगर आपको पता है अपने बारे में कि आप नहीं अट्रैक्टिव लड़कियों की तरफ, चाहे भी, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने कोशिश भी की, एक चीज़ अगर नहीं है तो नहीं है। इफ़ यू नॉट कट आउट फॉर इट, देन यू नॉट कट आउट फॉर इट। डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू एनी थिंग। अपने आप को समझें, अपनी बॉडी को समझें, उसकी डिमांड्स को समझें, उसकी नीड्स को समझें। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है तो एक चीज़ नहीं है, तो डोंट फोर्स इट। फोर्स में फिर होगा क्या कि फिर आप सोसाइटी को खुश करने के लिए या अपने आप को पैसिफाई करने के लिए, और ट्राइंग टू बी अ गुड मुस्लिम, ज़ाहिर है आपको एक वो वाला कंसर्न भी है, रिलीजियस कंसर्न, उसमें फिर जो है ना यू माइट बी फोर्सिंग फीलिंग्स ऑन टू योर सेल्फ। शायद फॉर अ वाइल यू डेवलप समथिंग, बट आफ्टर अ वाइल, वो कहते हैं ना, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं बोल सकते। एक पॉइंट के बाद फिर इट विल स्टार्ट टू इच यू कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और ये मैं, दिस इज़ नॉट हु आई एम, और आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ। फिर वो जो है ना वो फिर वो एक गलत, वो डाउनवर्ड स्पायरल की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। मैं आपको फिर, अब आपका एक कंसर्न ये है कि इफ़ यू कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस यू विल एंड अप इन हेल। वो, अब दिस इज़ अ रिलीजियस, ये तो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव वाली बात है, इसमें ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ना आप किसी ऐसे रिलीजियस एंटिटी से, किसी ऐसे रिलीजियस बंदे से बात करें जो कि इन मामलात में थोड़े से ओपन माइंडेड हो। आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे भी लोग होंगे जो कि वो एक टाइम अलग था कि ना होमोसेक्सुअल्स को जो है ना बिल्कुल डिसरिगार्ड करके, और बिल्कुल जी काफिर है, जहन्नुमी है, और उससे बात भी नहीं करनी है, दूर रहना है। वो एक पुराने वक्तों की बातें थी। अब आई थिंक अवेयरनेस जो है ना थोड़ी बहुत तो है, इन द सेंस के अगले की बात सुनने के काबिल हैं शायद लोग थोड़े। तो कोशिश करें ऐसे लोगों को ढूंढने की जिनके साथ आप ये मसला फ्रॉम द रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, जैसे कि आपका कंसर्न भी है, उनसे शेयर करें, एंड देन ट्राई टू सी व्हाट दे हैव टू से। वो आपको क्या रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो दौर गए कि जिसको कहते थे जी होमोसेक्सुअलिटी जो है ना ये तो मेंटल डिसऑर्डर है। इट्स नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ, यू कांट, जस्ट लाइक यू कांट फोर्स मी टू किस अ मैन बिकॉज आई एम अ स्ट्रेट मैन, यू कांट फोर्स मी टू डू इट, राइट? तो similarly, vice versa, you can't force someone to do what they're not cut out for, right? तो कोशिश करें, find someone who can help you from the religious standpoint. रही बात पेरेंट्स को ना बताने की और ये वो, अब दैट इज़ समथिंग यू हैव टू मेजर। आपने खुद देखना होगा आपके घर का माहौल कैसा है, हाउ वुड दे टेक इट इफ़ शुड यू प्लान टू कम आउट। आई वुड सजेस्ट यू शुड, अगर आपको लगता है कि कोई रिपरकशन कोई इतने वो ऐसे ना हो जिसमें कोई वायलेंस का ख़तरा ना हो, कोई आपको फिज़िकली हर्ट ना करे इन चीज़ों पे। देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स जो कि ज़ाहिर है पेरेंट्स फील करते हैं इस तरह, और आई एम प्रीटी श्योर if they love you they'll understand where you come from. I know it also depends on how you present your case. मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि ऑनेस्ट रहें अपने साथ, अपने आप को जो है ना मैं उस डिबेट में, सही गलत की डिबेट में जा ही नहीं रहा, वो दैट्स नॉट माई फोर्टे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ हु यू आर एंड स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ एक्नॉलेजिंग व्हाट यू वांट, ठीक है? अगर आप सोसाइटी के चक्कर में रहेंगे या सोशल प्रेशर्स या पीयर प्रेशर में कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा या अल्लाह मियाँ क्या सोचेंगे, ये वो, दैट फीलिंग विल मेक यू डू थिंग्स आउट ऑफ रैशनैलिटी, एंड दैट कैन पोटेंशियली हर्ट यू फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से। सो अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। उसके बाद कोशिश करें, इफ़ दिस थिंग स्टिल बग्स यू, try to find a scholar within your vicinity who can
understand your situation and who can guide you way forward. I'm pretty sure काफ़ी सारे इस तरह के lectures भी available होंगे. I've never really ventured on this subject personally, but अगर जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप कभी if you're on the same board as this person, तो आप भी guide कर सकते हैं कि what material to look for, how to cope up. I knew somebody through someone. See, I have a very soft corner for people who are homosexuals in a place like Pakistan. उसकी वजह ये है कि it's not an easy society for a straight person, let alone a gay person, right? तो किस तरह I know few of them. I know the kind of double lives they live. गाड़ी में अलग कपड़े, घर के अलग कपड़े, like expression, बहुत miserable life. And it's just very sad कि a person cannot be what they want to be. I knew this person through someone. He was working for a bank. Regular guy. You cannot tell कि he was hiding something. Regular guy, अपना काम से काम ही वो. The moment he migrated to one of the Western countries, उसकी जो Facebook profile थी, it completely changed. Nipple piercings or jungle party, and then like lots and lots of dudes. So I saw that. Obviously it was a shocker. Not a shocker, but ये कि मैं उसको इस तरह analyze कर रहा था कि यार ये बंदा, he was living a completely different life in Pakistan. और उसके अंदर कुछ और चल रहा था. तो मैं ये सोच रहा था कि यार what if you and what if I have to live a life like that, जिसमें हम constantly अपने आप से झूठ बोल रहे हो. झूठ ना बोल रहे हो like अपनी security के लिए. Let's not say the word झूठ, but like अपनी security के लिए we're living a completely different life. It's unimaginable कि वो कितने प्रेशर में रहता होगा, वो कितना एक्सप्रेस करना चाह रहा होगा, और वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही वॉज लिविंग इन पाकिस्तान सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था कि वो इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे कभी एक्सपोज करे. हैप्पी फॉर हिम. आई मीन लाइक ही फाउंड हिज वे आउट. और बहुत सारे इस तरह के लोग फिर बेचारे दे एंड अप माइग्रेटिंग बिकॉज दे कांट ब्रीथ इन दिस सोसाइटी, बिकॉज कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है. सीधा जहन्नुमी कह देना और ये कह देना वो कह देना. खैर, सो it is something that I really feel for, and it is what it is. ख्याल रखें अपना और कोशिश करें. Keep things to yourself. You never know. पाकिस्तान में जो है ना अजीब लोग हैं, कोई कभी भी कुछ भी कह के फतवेबाजी पे भी कर सकते हैं. हाँ जी, another one on the same topic, surprisingly. A guy in love with another guy. Hello, this is my third shot at trying to get an answer. I'm sorry, but agar I missed your emails. I would still not start by mentioning my name, okay, for obvious reasons. I'm 27, a young male adult, and I have concluded that my life is a mess right now. And I believe I am my own biggest enemy. I believe one of the reasons may be the fact that my mother and father got separated, and it wasn't a normal separation. It involved a lot of police and other stuff. Eventually, we ended up with our mom, and my father, who already didn't care enough, he married someone else. From the inception, I knew I have to take care of my mother and siblings. My mother is all my parents. It all started after my graduation. I graduated in computer engineering from a reputable university in Pakistan and started to get a job offer from government sector. I wanted one job the most in government, and because of that, I let all the other options go, sadly. I didn't get it and I got shattered. From my childhood, I always wanted to settle abroad, and not getting this job turned out lucky because I was able to go to the US. Now I belong to a middle class family, therefore I cannot let my family pay all my fees and for my masters in the US, and hence I started with odd jobs, 80 hours to make enough support to myself. Wow, man, that's a lot of work. I did loan money from my mother, but I always had intention of paying them off. Now I know I didn't do a perfect job of saving because beta, you're not coming to the point. Here the thing is, I always knew in my heart that engineering is something I'm not interested in.
Even for a bachelor's degree, I wanted to opt for films and literature, but I couldn't. Brown parent syndrome. Worked my ass off in the US for a master's in the degree in something that doesn't even interest me, made me known that it's worthless, and I started to take extra classes alongside. ठीक है. And then Corona happened. After I came back, I decided that I don't want to do my master's in computer science, and I gave it to realign my life for arts. I even took a leap of faith and delayed out in going to the US, and of course, the corona is making it worse. I'm happy with my decision. I'm slowly making progress, and the work I'm doing is unpaid. Now I'm unemployed and 27. My family wants me to marry and get settled, but I only just started to find myself. Living in the US made me known to my sexuality. I realized that I'm pansexual. The term therapist there used, yes, I saw a therapist because university recommended me when I was depressed in engineering. I came to know this because I fell in one-sided love with a guy. I never knew I had the option to like guys too, but this presence changed me. I always dreamed about him. I imagined my life around him. I know if he is there, my life would be perfect, but I delayed in making a response because I was scared how my parents would respond. Now, when I try to approach him, I lost him. Even to date, it hurts me so hard. I don't think I can ever love again. I also read a lot, and reading always made me question my religious beliefs to topple between extremely liberal perspective to somewhat agnostic. Currently, I'm questioning everything, my religion, my sexuality, and my career. And in that instant, the only happiness I have is that I am finally pursuing a career in something I always wanted to do, but I still have bigger issues. I don't have a job, and my parents want me to settle and marry. Recently, my cousin's sister is getting married, and she's younger than me, and this brought a lot of pressure on me to get married. But I'm confused. The dream job related to engineering did show up again only recently, and I'm almost on the verge of going back to the US. But right now, I'm confused. Should I go back and hustle there? Should I stay back and do that extreme job and marry here? I know the US was hard last time, but I was disoriented last time. Uh, this time, I have a clear direction of what to do and how to do it. Is it a crime that I'm 27 and I don't have a stable job and a stable career? Should I tell everyone I'm pansexual? Help me. This anxiety is killing me. All I ever dream is to have a successful writer, filmmaker, but I think I would be a failure. I don't know what to do. I never wanted this email. I don't know why I'm typing this. Please don't read my name. Okay, I don't read names at all. Okay, so basically, there's this 27-year-old from a middle class family, divorced, not the regular divorce. It was pretty ugly, as he said. फिर वो यूएस चले गए पढ़ने वगैरह वगैरह वगैरह. He wanted to do something else. There's nothing wrong in being 27 and jobless. I mean, you're late to the party, but then remorsing over the fact that you're 27 will only lead you to be 28 and remorse again. So take action and start now. There's कोई मसला नहीं. सबकी लाइफ, हमने ना ये गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है कि सबकी लाइफ 18 से इस तरह शुरू होनी है. देखिए, सबके सर्कमस्टांसेस बड़े डिफरेंट होते हैं. वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि लाइक स्टार्ट वर्किंग एज अर्ली एज यू कैन, बिकॉज इट गिव्स यू a lot of experience and other things as well. मगर ये कि सबकी ज़िंदगी जो है ना, सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट होते हैं. ऑब्वियसली योर फैमिली गोइंग थ्रू अ वेरी टेरेबल डिवोर्स एंड देन और दूसरे सारे इश्यूज. सो it's okay you didn't get that job. It's okay you're 27, but I'm glad at least you know what you want. ठीक है. रही बात pansexuality की, I don't know how your family will take it. So that's absolutely your call. मगर ये कि शादी अगर आप, और ये आपके पेरेंट्स फोर्स, आपकी मदर फोर्स कर क्यों रही है शादी when she knows that you're 27 and you don't work? So that's something that could lead to a lot of abuse to your wife to be. So that is not something I would recommend. Don't do that. So आपने एक फिल्म मेकर बनना है और and if you think US में you can exercise those freedoms and exercise those dreams that you have, then go for it.
ठीक है, कोरोना वाला टाइम वॉज वेरी टफ एंड थिंग्स वर बहुत डिफरेंट. अब तो खैर वैक्सीनेट हो गए काफ़ी लोग, और यूएस में तो लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है. सो आई वुड सजेस्ट यू शुड डू दैट, बिकॉज वो फिर ये एक चांस है ज़िंदगी में, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. इफ़ यू सेटल डाउन विद समवन देन यू कैन ओनली ड्रीम अबाउट दीज थिंग्स. तो जब तक अकेले हो, आज़ाद हो, तो ये चीज़ें एक्सरसाइज कर लो. रही बात क्वेश्चनिंग रिलीजन एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, इट्स फेयर टू क्वेश्चन दीज थिंग्स. ये ख्यालात आते हैं लोगों के दिलों में. आई होप यू फाइंड आंसर्स एंड आई होप यू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ whichever way it leads you to be, but I hope you find happiness and peace. मैं आपको यही कहूँगा कि शादी is not an option, especially considering your pansexuality and the fact that you're not working. तो वो गलत बात हो जाएगी. किसी की ज़िंदगी इस तरह ना ही ख़राब करें तो बेहतर होगा, वरना वो फिर ज़िंदगी भर का गिल्ट जो है ना, एंड इट्स कर्मा मैन, लाइफ वर्क्स इन कर्मा, इट स्ट्राइक्स बैक. सो ये तो बिल्कुल भी जुल्म किसी के साथ मत कीजिएगा. मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को, अपने आप को पहले जाने, अपने आप को पैरों पे खड़ा करें. व्हेन यू नो दैट यू कैन, यू आर इमोशनली स्टेबल इनफ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली यू आर रेडी फॉर इट, ओनली देन गो फॉर समथिंग लाइक दैट. सो आई वुड सजेस्ट कि जिस किस्म का फ्रीडम आप चाह रहे हैं अपनी सोच में और अपने करियर में, वो आपको अमेरिका में ही मिल सकता है. तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक्सरसाइज दैट ऑप्शन. दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन इन योर केस. और इस पे रिमोर्स ना करें कि मैं 27 साल का हो गया और काम नहीं करता. बहुत सारे अभी इससे पहले जो ईमेल थी, 4 बच्चे हैं काम नहीं करते भाई, कम से कम यू डोंट हैव दोस प्रॉब्लम्स, राइट. सो इट्स ओके, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं लोगों के. आई होप, बट टेक एक्शन एंड बस ये कि 27 से फिर 28 ना हो. ट्राई एंड स्ट्राइव फॉर दैट. ठीक है, चलो ख्याल रखना अपना. टॉक्सिक डर्टी रूममेट, ओह गॉड, ट्रिगर वार्निंग. कसम से क्या याद दिला दिया. हाय जुनेद भाई, आई होप यू डूइंग वेल. आई एम राइटिंग टू डिस्कस दिस सिचुएशन. आई एम स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 2 months. आई एम अ मास्टर स्टूडेंट इन इटली एंड आई एम लिविंग विद अ चाइनीज गाय. बिफोर अराइविंग इन इटली, बोलोने कहते हैं, बोलोने. It's been very difficult to find a good spot and especially a good student accommodation so that I can enjoy culture, meet friends, try new food and stuff. I made a big sacrifice to live with Italians and other nationals, even though I had an option to live with a Pakistani fellow whom I love, but I just wanted a different experience. Oh भाई, पाकिस्तान से जाके ना, पाकिस्तान से दूर रहना होता है. क्यों नहीं समझते तुम लोग? फिर जब तुम्हारे मोजे पहनेंगे ना, अबे मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरी है ना रूममेट्स, अबे भाई वो वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. IBA के ग्रेजुएट्स के साथ मैंने रूम शेयर किया था. मेरे पहने हुए मोजे पहन के चले जाते थे, पहने हुए मोजे. एक होता है ना अपने नहीं धुले हुए, वॉशिंग मशीन से मेरे निकाली, नहीं, मेरे जूते से निकाल के. ये IBA के स्टूडेंट्स की हरकत. सुन रहे हैं अगर तो लानत है यार. मतलब मैं आई हैड अ टेरिबल टाइम विद दोज रूममेट्स मैन. I booked the place before I arrived in Italy and I talked with my flatmates. It went perfectly fine, but I didn't know my roommate and how he is. When I reached my room, it was a total mess with food, clothes, and a lot of mess. I was really sad when I saw that because I wanted to improve my lifestyle, adapt a cleaner environment since we don't do that in our country usually. Anyways, I tried to tell him things about the bathroom, room, basic etiquettes of living together, but he didn't give a damn. He always replies, yeah, sure, but he does nothing. Eating in the room, weird things which smell bad. ये तो इशू है. अब ही इज़ लिविंग विद अ चाइनीज़ गाय, वो क्या स्क्विड खा रहा होगा, ये खा रहा होगा. आई रिमेंबर मैं जब माई फर्स्ट अकोमोडेशन इन दुबई, सो इट वॉज अ विला. सो माई रूम मेट्स वर ऑल पाकिस्तानीज, मगर बाहर फिलिपिनोज का एक रूम था और मेन हॉल में किचन था. अब दे वुड कुक ऑल द शिट इन द वर्ल्ड, और दैट वाज रियली बैड मैन. वो तो बर्दाश्त नहीं. और नीचे बांग्लादेशीज, तो वो तो एनी टाइम कढ़ाई पे मछली चल रही है, एनी टाइम. भाई पता है क्या था, विला था बहुत बड़ा, नीचे एक रूम था, वहाँ पे रहते थे बंगालीज, ठीक है, और वो शिफ्टों में रहते थे. जैसे 15 बेड हैं तो 30 लोग रहते हैं. एक शिफ्ट वाला आके सोता है, दूसरा काम पे, फिर वो आता है, मतलब एक बेड पे 2 लोग सो रहे हैं, राइट. अब चूंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में लोग हैं तो उनके खाने के टाइम भी डिफरेंट है. अबे कढ़ाई कभी मैंने बंद ही नहीं देखी. वो कढ़ाई पे कोई ना कोई धोती पहन के लगा रहता था. ये अबे मछली पूरे विला में. ऊपर फिलिपिनोस थे, वो सुअर खाते थे.
ठीक है, अबे भाई बर्दाश्त ही नहीं होता था, बड़ा अजाब है यार ये। ओके, he does nothing, eating in the room, weird things which usually smell bad, हाँ, unable to use the bathroom and managing the basic, ही यार एशियंस हैं ही गंदे यार, पता है क्या, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज़ हैं ही गंदे. He knows nothing and I have to do a lot of things because I'm slowly getting aggressive and losing my studies performance slowly. I want to get your advice if I should try to push him out of the house or find new accommodation, since finding a new accommodation in Bologna is super tough and especially a good place. It took me 2 months to find this place. I don't know what to do. All my flatmates like me, they don't want to live with a Chinese guy. But I don't know which is the right thing to do. I will wait for your response. भाई इसको निकाल दो अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो अगर बाकी सारे आप लोग एक साथ हो तो उसको निकालो, बोलो भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा, जाओ निकलो यहाँ से. अगर इफ़ दैट्स नॉट एन ऑप्शन, फिर ये कि फिर आप कोई और जगह ढूंढ लो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार, ये मैंने ना आई बिन थ्रू दिस, और ये ना मैं बिल्कुल बुरी तरह ट्रिगर हो गया हूँ. ये बड़े नसीबों वाली बात होती है कि आपको एक अच्छा रूममेट मिला हो या अच्छा सा फ्लैटमेट हो जो कि साफ़ हो. यार लोगों को बाथरूम नहीं यूज़ करना आता, क्या बंदा बात करे यार. सब वेरी वेरी बहुत बहुत गंदा हो जाता है यार सीन. प्राइवेसी भी नहीं है, ये भी नहीं है. कोशिश करो भाई, काम वाम ऐसा कोई पकड़ लो कि अपना ही फ्लैट ले लो या अपना ही पूरा रूम ही अपना ले लो, ताकि किसी से वास्ता ही ना पड़े आपका. ट्राई टू स्ट्राइव फॉर दैट. आई नो इट्स नॉट ईजी इन अ कंट्री लाइक इटली. पैसे लगते हैं भाई, पैसा खर्च होता है, यूरोज़ में खर्च होता है, और स्टूडेंट हो, आसान नहीं है, कोरोना भी है, काम भी नहीं है. मगर ये कि उसको निकालने की करो, सारे मिलके बोलो भाई नहीं चाहिए, आप बर्दाश्त ही नहीं हो रहे आप, जाओ. अगर इफ़ दैट्स नॉट एन ऑप्शन, फिर ख़ुद कोई और जगह ढूंढ लो. वरना पता है क्या, देखो इंसान का जो घर होता है ना, वो उसका पीसफुल अबोर्ड होता है, हम्बल अबोर्ड. अगर वहीं पे ही सुकून नहीं है ना, तो बेकार है सब. फिर सारा दिन का मारा मारी करो, फिर घर आके अगले का सूअर तल रहा है जो सूंघ रहे हैं बैठ के. ये क्या लाइफ है यार. घर में तो सुकून चाहिए ना. तो ये बिल्कुल भी नहीं भाई, ऑफ लिमिट्स है. सफाई सुथराई वाली जो है ना, ऑफ लिमिट्स बात हो जाती है बहुत. तो कोशिश करें इससे जान छुड़ाएं, वरना ये जो है ना फिर आपकी हर चीज़ की परफॉर्मेंस ख़राब करेगी ये चीज़, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट इन लाइफ राइट नाउ. खैर, तो ये थी आज की ईमेल्स. हैं तो खैर बहुत सारी, मगर ये कि मैं थक गया पढ़ पढ़ के. तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी. आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड एंड यू प्रॉब्ली गॉट टू लर्न अ लॉट. कोई भी सवालात हों ज़रूर भेजिएगा, और पेट्रियन पे यू कैन सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द बात होगी. खुदा हाफिज़.